Hello everyone, welcome to my channel. So we started the chapter cell in the previous lecture and we started up till here in the previous lecture, we started the cell envelope and its modifications. So now we are going to study the next topic, which is ribosomes and inclusion bodies. Okay, as we are dealing with the prokaryotic cell right now, okay, we are including with the prokaryotic cell. Okay, so in this prokaryotic cell we are going to study, we have already studied the cell envelope and now it's the turn of ribosomes and inclusion bodies. So in prokaryotes, ribosomes are associated with the plasma membrane of the cell. Okay, so what you can say is, like, this is the bacterial cell, okay, and this is the plasma membrane, let's suppose, and these are the mesosomes. Okay, so here is the ribosome. So onto the plasma membrane, what is attached? The ribosomes are attached. Okay, so they are about 15 nanometer to 20 nanometer in size. The size of it is this, and they are made up of two subunits, 50S and 30S. Okay, which when present together form 70S prokaryotic ribosome. So what we can say is the ribosome. Okay, ribosome has the sedimentary coefficient 70S. What is S? S is the sedimentary coefficient, or you can also call it as Swedberg's unit. Okay, so what does it tell you? That how big in size it is. Okay, the more big in size it is, the more it will settle down. Okay, the less it is in size, the lesser it will settle down. So 70S is made up of your 50S and 30S subparts, 50S and 30S. 50S is the larger ribosomal subunit and 30S is the smaller ribosomal subunit. Okay, so when both of these combine, which forms the 70S. Now you will ask me, ma'am, 50 plus 30 is 80, how come it is 70? So when you when you introduce both of these together, like this is the one part, and they get mingled with each other like this. Okay, let's suppose this is 30S and this is 50S. Okay, so when they are joined together, you can say, so some of the portion gets inside them, gets together with each other, like we put finger in finger. Okay, we join hands in hand. So what happens, like suppose if suppose both the hands, one hand is of 5 centimeter, other hand is of 5 centimeter. Okay, when we join both of these hands together, okay, like this, so the finger part will overlap, the finger parts will overlap, so that overlapping part, in this overlapping part, the 10S unit is lost. You can say it is in the overlapping scene. So together it is your 70S. Okay, so ribosomes are what? They are site of protein synthesis. Okay, so several ribosomes may attach to a single mRNA and form a chain called polyribosomes or polysome. So this is in the case of when a mRNA, this is, let's suppose, an mRNA. Okay, so this is mRNA. This you are going to study more in detail in your 11th standard, 12th standard, sorry. mRNA is messenger RNA. Okay, so what happens, the ribosomes come and attach here, okay, for the translation of protein. Okay, the ribosome comes and attach here for the synthesis of protein. Okay, this is called as, the process is called as translation. Okay, okay, this happens generally, but when on an mRNA, when many ribosomes come and attach, like this,
Okay, so when many ribosomes come and attach here, that is called as, this structure is called as polyribosome, or you can also call it as polysome. Okay, so the ribosomes of a polysome translate the mRNA into protein. So what these ribosomes do, this is a ribosome na, this is a ribosome. What these ribosomes do, they translate this mRNA, they translate this mRNA into protein, right? Now the next is inclusion bodies. So inclusion bodies are what? They are some extra bodies in the cell. So reserve material in prokaryotic cells are stored in the cytoplasm in the form of inclusion bodies. Getting me? So this is the prokaryotic cell. Okay, so here the reserve material is stored in the form of inclusion bodies. Some bodies are here which store the reserve food material. Okay, so these are not bound by any membrane system and lie free in the cytoplasm. Okay, so these are what? These are you can say inclusion bodies, okay, having no membrane absent, you can say. Okay, absent. Example like phosphate granules, cyanophycin granules and glycogen granules. So these are the examples of your inclusion bodies. These are different types of inclusion bodies which store phosphate and starch, okay, and glycogen. So all of these are the different components which are stored by these different granules. Then next is gas vacuoles are found in blue, green and purple and green photosynthetic bacteria. Okay, so why gas vacuoles? These gas vacuoles give them buoyancy. What they give? Buoyancy. So these are the cells which live in, which are on the water, which are in the water now. So blue green bacteria, purple bacteria, okay, and green photosynthetic bacteria which are in the water. So these gas vacuoles provide them buoyancy, okay, so that they can float over the water surface. Okay, now the next topic is eukaryotic cells. Okay, so we are done with the prokaryotic cells. Prokaryotic cells contain what? What do prokaryotic cells have? We started from here, prokaryotic cell. Okay, so this is the typical types of your bacteria, the sizes we studied. Okay, and what is the composition of it we saw, like the cytoplasm or the genetic material, whatever it is. Okay, then we studied its cell envelope and its modifications. Fine, in modifications we studied the mesosome, then filament, hook, basal body, all of these are the parts of your flagella, then pili, fimbriae. Okay, then we studied the ribosomes and inclusion bodies as well. Okay, so let's see the eukaryotic cells now. Let's start it. So eukaryotic cells, eukaryotes include what? In eukaryotes there are protists, plants, animals and fungi. Okay, so in eukaryotic cell there is an extensive compartmentalization of cytoplasm. Means the cytoplasm is divided into different compartments for performing the different functions. Okay, through the presence of membrane bound organelles. इनके पास क्या होता है? इनके पास ये जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, राइट, यूकैरियोटिक सेल्स का जो साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, लाइक दिस इज द न्यूक्लियस, लेट्स सपोज, और इसमें क्या है, अलग अलग ऑर्गेनेलेज होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म को डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं. ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स के पास ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस है विद अ न्यूक्लियर एनवेलप, ऑब्वियसली, है ना. ये क्या है? ये न्यूक्लियर एनवेलप है. In addition, eukaryotic cells have a variety of complex locomotory and cytoskeletal structures. Their genetic material is organized into chromosomes, right? So, eukaryotic cells के पास क्या है? हाँ, क्या है? काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स हैं. मतलब लोकोमोटरी मतलब जो कि उनको कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि आपके मूव करते हैं, लाइक
फ्लैजिला भी होता है काफ़ी सेल में, है ना, तो वो मूव कर सकते हैं। साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर मतलब क्या, साइटो मीन्स व्हाट, साइटो मीन्स सेल, और स्केलेटल आप जानते ही हैं, मतलब सेल का स्केलेटल क्या है, जो कि सेल के शेप को मेंटेन करने में काम में आ रहा है ना, सेल का स्ट्रक्चर शेप बनाए रखने में मदद कर रहा है। ऑब्वियसली जैसे हमारी बॉडी का स्केलेटल होता है जिससे कि हमारी बॉडी का शेप बना रहता है, राइट। अगर हमारा स्केलेटल नहीं होता तो हमारी भी बॉडी का शेप नहीं बना रहता, राइट। सो दिस इज साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। इनका जो जेनेटिक मटेरियल है ना, किस में ऑर्गेनाइज्ड है, क्रोमोसोम्स में ऑर्गेनाइज्ड है। मैंने आपको बोला था मैं आपको बताऊंगी क्रोमोसोम, डीएनए, जीन, क्या क्या इनमें सिमिलैरिटी, क्या क्या इनमें क्या कहते हैं कनेक्शन है, विल स्टडी दैट। सो सभी यूकैरियोटिक सेल्स आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है। Plant and animal cells are different as the former possess cell walls, plastids and large central vacuole, right? So difference है भाई, plant cell में क्या है, plant cell में आपका क्या difference है ना, plant cell में क्या होता है, plant cell में cell wall present होता है, ठीक है। plant cell में plastids होते हैं, ठीक है। plant cell में आपका वैक्यूल होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो प्लांट सेल में होती हैं। एंड एट द सेम टाइम जो एनिमल सेल है ऑन द अदर हैंड, ओके, इनके पास ना सेल वॉल होता, ना प्लास्टिड होते, वैक्यूल्स भी होते हैं तो बहुत ही छोटे होते हैं। इनके पास सेंट्रियोल होता है, राइट। एनिमल सेल के पास क्या होता है, सेंट्रियोल होता है, जो कि प्लांट सेल में एब्सेंट है, जो कि सेंट्रियोल क्या है, यहाँ पर नहीं होता, प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होता, और एनिमल सेल में सेल वॉल है, प्लास्टिड्स, सेल वॉल नहीं होता, ठीक है। और यहाँ मैं लिख देती हूँ, चलो, सेल वॉल नहीं होता, सेंट्रियोल तो होता है, सेल वॉल नहीं होता, प्लास्टिड्स नहीं होते, ठीक है, जो कलर्ड सेल ऑर्गेनेली हम इनको बोलते हैं। वैक्यूल्स होते नहीं होते हैं, और होते भी हैं तो वेरी स्मॉल होते हैं या फिर नहीं होते हैं, ठीक है। और बाकी इधर ये सेल वॉल, प्लास्टिड, वैक्यूल तो है ही, ठीक है। एनिमल सेल्स हैव सेंट्रियोल्स विच आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल्स, ठीक है। सेंट्रियोल तो प्लांट सेल्स में एब्सेंट होता ही है। सो लेट्स सी द फर्स्ट स्ट्रक्चर हियर। दिस इज द व्हाट शोइंग, दिस इज शोइंग यू द प्लांट सेल, ठीक है। इसको हम डिटेल स्टडी करते हैं। देखिए प्लांट सेल में ये सबसे बाहर क्या है, सेल वॉल है, ठीक है, विच इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है, मेजरली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। लिग्निन सुबेरिन भी होता है, लेकिन वो कुछ ही स्पेसिफिक सेल्स में होता है, ठीक है। लिग्निन एंड सुबेरिन भी होता है, बट इन ओनली सम स्पेसिफिक सेल्स ओनली, बट सेल्यूलोज तो आपको सभी में मिलेगा, ठीक है। सेल्यूलोज तो इसका मेजर कंपोनेंट है ही, मेन हीरो है ही सेल वॉल का, राइट। बिना सेल्यूलोज के सेल वॉल कुछ नहीं है, ओके। और फिर उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, उसके अंदर आपको मिलेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगा, राइट। सबसे बाहर है आपका सेल वॉल, ठीक है। फिर उसके अंदर ये दूसरे नंबर पर ये रहा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, देखिए आप यहाँ पर ये न्यूक्लियर एनवेलप है, न्यूक्लियस का जो एनवेलप है, दिस इज गोल्जी एपरेटस, गोल्जी बॉडी है, ये आपको दिख ही रही है बहुत अच्छे से। न्यूक्लियस के अंदर ये आप देख रहे हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस, राइट, जो आपको एक डेंस स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक दैट इज द डेंस स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमैटिन, ठीक है। एक तरीके से आप क्या बोलेंगे, क्रोमैटिन जो होता है उसका डेंस स्ट्रक्चर इज द न्यूक्लियोलस हियर, राइट। देन आपको यहाँ पर RER दिख रहे हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपके लाइसोसोम्स आपको दिख रहे हैं, सुसाइडल बॉडीज, इनको बैग्स हम कहते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके ऊपर आपका राइबोसोम नहीं है, ठीक है। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा इज दी जो इनके बीच में जो बीच में इनके लिंक्स ये जो बने हुए हैं, पैसेज टाइप के आप देख रहे हैं, ये जो बने हुए हैं, दिस इज प्लाज्मोडेस्माटा। दीज आर माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं यहाँ पर, ये स्मॉल ये फाइबर्स, फिलामेंट्स टाइप के हैं, जो कि सेल के स्ट्रक्चर को बनाने में काम में आ रहा है। पेरोक्सिसोम भी एक बॉडी है, साइटोप्लाज्म तो है यही है, इसका मैट्रिक्स है, क्लोरोप्लास्ट है,
these are ribosomes here and mitochondria is here. So हम एक एक करके इन ये जो सभी सेल ऑर्गेनेल्स मैंने अभी आपको केवल यहाँ पर दिखाए हैं, केवल लोकेट किए हैं हमने, इनके बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे, राइट, इसी चैप्टर में आगे. यहाँ पर एक बार आप एनिमल सेल और देख लीजिए. लेट्स गो थ्रू एन एनिमल सेल फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, देन हम डिटेल में एक एक करके सभी ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे. सो एनिमल सेल में सबसे बाहर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, राइट. देन गोल्जी एपरेटस तो है ही, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियर एनवेलप जो कि एनवेलप है न्यूक्लियस का, न्यूक्लियोलस है, उसके अंदर जो डेंस क्रोमैटिन स्ट्रक्चर है. देन योर न्यूक्लियस इज हियर, दिस इज द साइटोप्लाज्म, दिस इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स हैं, लाइसोसोम है, परऑक्सीसोम है, सेंट्रियोल आपको दिख रहा है, सेंट्रियोल जो कि केवल इसी में ही प्रेजेंट है, प्लांट सेल में नहीं था. Yes, we didn't study centriole in the plant cell, and these are microvilli. ठीक है, ये स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो निकलते हुए आ रहे हैं, एक एक का फंक्शन पढ़ेंगे, डोंट वरी. सबसे पहले आ जाओ सेल मेम्ब्रेन पर. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन किसका हम पढ़ रहे हैं? सेल मेम्ब्रेन ऑब्वियसली हम किसका पढ़ रहे हैं? यूकैरियोटिक सेल्स का. मैंने पिछले लेक्चर में क्या बताया था? एक बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताई थी. क्या बताई थी मैंने? रिगार्डिंग दी सेल मेम्ब्रेन, कि सेल मेम्ब्रेन जो है इस धरती पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उन सभी का सेल मेम्ब्रेन एक ही जैसा है ना. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन दिस अर्थ, वेदर इट इज प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, यूनी, मल्टी, व्हाटएवर, सभी का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह लो या फिर तुम सेल मेम्ब्रेन कह लो, राइट, सभी का प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ व्हाट? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. क्या है ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर? इसी को यहाँ पर हम डिटेल में अभी स्टडी करेंगे, डोंट वरी. सो सी हियर द डिटेल्ड स्ट्रक्चर of the membrane was studied only after the advent of electron microscope in 1950s. ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हुई तब जाकर 1950 में जब ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना आया, तभी जाकर सेल मेम्ब्रेन को डिटेल में स्टडी कर पाए. मीनवाइल जो केमिकल स्टडीज़ हैं ऑन दी सेल मेम्ब्रेन स्पेशली इन RBCs enabled the scientists to deduce the possible structure of plasma membrane, right? तो RBCs साइंटिस्ट ने क्या किया था? सबसे पहले RBC, बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखें कि सबसे पहले किस पर केमिकल स्टडी हुई, कि उनका केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो ये RBC के सेल पर देखा गया सबसे पहले, राइट, इसको ध्यान में रखें. ये स्टडीज शोड दैट सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ किसका? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. इसको ध्यान में रखें, किसका बना है बेटा? लिपिड का और प्रोटीन का. तो जो मेजर लिपिड है यहाँ पर वो क्या है? फॉस्फोलिपिड है. मैंने बताया यहाँ पर ये रहा है ना, ऐसा लिपिड जिससे फॉस्फोरस जुड़ा हुआ है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, दैट इज द मेजर लिपिड. ठीक है, दैट आर अरेंज्ड इन अ बाइलेयर. कैसे? जैसे ये एक लेयर है बेटा फॉस्फोलिपिड की, ये मैं बना रही हूँ यहाँ पर, देखेंगे सभी लोग बहुत अच्छे से. हम केवल और केवल NCERT को ही अच्छे से करते हुए चलेंगे, राइट, लाइक दिस. ये देख रहे हैं आप, ये एक लेयर बना दी फॉस्फोलिपिड की, दिस इज वन लेयर एंड दिस इज अनदर लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, राइट. तो ये क्या बन गया आपका? फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर बन गई है. Also, the lipids are arranged within the membrane with the polar head towards the outer sides and the hydrophobic tails towards the inner side. ठीक है, तो ये तो क्या है? ये है head. ये क्या है? ये है head. So head here is hydrophilic. ठीक है, head यहाँ पर क्या है? hydrophilic है. hydrophilic means वाटर लविंग है. ठीक है, और ये है टेल विच इज
हाइड्रोफोबिक जो कि वाटर हीटिंग होती है, विच इज वाटर हीटिंग. ओके, सो अब जो हेड पार्ट होता है ना बेटा, हेड पार्ट जो होता है वो पोलर होता है, ठीक है, और जो टेल पार्ट है दैट इज नॉन पोलर. इसको ध्यान में रखें आप लोग. This ensures that the non-polar tail is saturated hydrocarbons is protected from the aqueous environment, right? ये हाइड्रोफोबिक है ना, ये टेल जो है अंदर की तरफ है ना, आपको दिख रही है टेल अंदर की तरफ है, तो जो आसपास जो इधर और जो इधर है ना, ये बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. ये मैंने आपकी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल है और ये सेल का ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जा रहा है, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जा रहा है. तो सेल के अंदर की तरफ एक्वस एनवायरनमेंट है, समझ रहे हैं, और सेल के बाहर की तरफ भी एक्वस एनवायरनमेंट है. गेटिंग मी ऑल ऑफ यू? पानी है ना. तो ये जो टेल है ना, ये टेल अंदर की तरफ है, मीन्स इट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट, राइट. इन एडिशन फॉस्फोलिपिड्स के पास क्या होते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी होता है, ठीक है, सम कोलेस्ट्रॉल्स एज वेल. दिस इज योर cholesterol. Okay. Later, biochemical investigation clearly revealed that the cell membranes also possess protein and carbohydrates. Right? Later ये बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, राइट. सो जो रेशियो होता है प्रोटीन एंड लिपिड्स का वेरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप्स. ऑब्वियसली इट वेरीज. तो यहाँ पर क्या है, जो ह्यूमन बींग्स हैं, इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखें, इस पे क्वेश्चन आ सकता है. द मेम्ब्रेन ऑफ द एरिथ्रोसाइट हैज अप्रॉक्सीमेटली 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड्स. ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स क्या है बेटा, आरबीसीज. ठीक है, तो आरबीसी के मेम्ब्रेन, ध्यान दीजिए यहाँ पर, आरबीसी के मेम्ब्रेन में 52% प्रोटीन होता है, राइट, और 40% क्या होता है, लिपिड होता है. ठीक है, सो डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू इंटीग्रल एंड पेरिफेरल. ठीक है, ये तो हो गए आपके इंटीग्रल प्रोटीन्स, मतलब जो कि अंदर तक धसे हुए हैं, राइट, अंदर तक धसे हुए हैं, आप इनको इतना इजीली नहीं निकाल सकते. दिस इज योर इंटीग्रल प्रोटीन, करेक्ट. एंड जो बाहर की तरफ है ना, यू कैन easily take it out, that is your what, peripheral protein, right. So peripheral proteins lie on the surface, जैसा कि मैं यहाँ बना चुकी हूँ already of the membrane, while the integral proteins are partially or totally buried in the membrane, right. या तो वो आधे या पूरे मेम्ब्रेन के अंदर धसे हुए होते हैं, बरीड होते हैं. एवरीबॉडी इज विद मी? यस. एक इम्प्रूव्ड मॉडल देखा गया ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन वॉज प्रपोज्ड बाय, इसको ध्यान में रखें आप, सिंगर एंड निकल्सन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं, इन पर क्वेश्चन आ जाता है कि सिंगर और निकल्सन ने ये मॉडल दिया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो मैं आपको ऑलरेडी बना के दिखा चुकी हूँ ये. ठीक है, और आगे ये फिगर में भी आ जाएगा, डोंट वरी फॉर इट. अकॉर्डिंग टू दिस, जो क्वासी फ्लूइड नेचर है लिपिड्स का, इनेबल्स लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स विद इन द ओवरऑल लेयर. ठीक है, लिपिड्स का क्या है बेटा, क्वासी फ्लूइड नेचर है, तो जिस वजह से ये लेटरली मूव कर पाते हैं इस तरीके से. ठीक है, दे कैन मूव लेफ्ट राइट लाइक दैट. ये जो एबिलिटी है टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी, राइट, क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन का कैसा नेचर है बेटा, क्वासी फ्लूइड, तो इट कैन मूव लाइक दिस और लाइक दिस. सो दिस इज कॉल्ड एज फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, राइट. सो ये फ्लूइडिटी किसकी वजह से आई है, बहुत अच्छे से आप ध्यान में रखेंगे, किसकी वजह से आई है, लिपिड की वजह से आई है. क्यों आई है लिपिड की वजह से, क्योंकि लिपिड का जो नेचर है वो कैसा है, क्वासी फ्लूइड नेचर है, राइट.
So the fluid nature of the membrane is also important from the point of view of functions like क्या, ये जो fluid nature है ना, थोड़ा एकदम ये solid नहीं है, थोड़ा quasi fluid सा nature है, तो ये क्यों ज़रूरी है सेल की ग्रोथ के लिए? इसी वजह से क्योंकि क्वासी फ्लूइड नेचर जिसकी वजह से सेल की ग्रोथ होती है, जो इंटरसेलुलर जंक्शंस हैं वो बनते हैं, मतलब दो सेल्स के बीच में जो जंक्शन होता है, ठीक है, इंटर मीन्स बिटवीन और सेल्यूलर मीन्स सेल्स, ठीक है, तो दो सेल्स के बीच में जो जंक्शन बनता है, लाइक दो सेल्स हैं, इनके बीच में जो भी जंक्शन बनेगा, कुछ भी कनेक्शन होगा, दैट इज ड्यू टू दिस क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड, राइट। लाइक अगर कुछ सिक्रीशन होना होगा या फिर एंडोसाइटोसिस होना होगा या फिर सेल डिवीजन होना होगा। एंडो मीन्स व्हाट बेटा? एंडो मीन्स इन एंड साइटोसिस मीन्स सेल, तो एनीथिंग विच इज गेटिंग इनसाइड अ सेल, ठीक है, कोई भी चीज़ जब बाहर से अंदर आ रही है दैट इज एंडोसाइटोसिस, राइट, और कोई भी चीज़ जब अंदर से बाहर जा रही है तो दैट इज एक्सोसाइटोसिस। क्लियर एवरीबॉडी? तो ये सभी काम में ये आता है जो क्वासी फ्लूइड नेचर है लिपिड का, क्या क्या सेल की ग्रोथ के लिए, है ना, इंटरसेलुलर जंक्शंस बनाने के लिए, सिक्रीशन के लिए, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन इसी वजह से होता है। तो जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट, है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है? इसके अक्रॉस मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, राइट। सो द मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल टू सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन ईदर साइड ऑफ इट, राइट ना। तो कोई भी मॉलिक्यूल जैसे अंदर भी हो या बाहर भी हो, आउट हो या इन हो, तो ये जो मेम्ब्रेन है ये सेलेक्टिव होती है उनके लिए, ठीक है, सेलेक्टिवली परमेबल होती है, मीन्स सेलेक्टेड मटेरियल को ही अंदर बाहर आने जाने देती है। Many molecules can move briefly across the membrane without any requirement of energy and this is called as passive transport। तो ये जो molecules move करते हैं ना, ठीक है, ये जो molecules move करते हैं ये आपके दो तरीके से मूव करते हैं। ये जो ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट मतलब क्या? ये जो सेल के अंदर और बाहर जो भी मॉलिक्यूल्स आ जा रहे हैं, राइट, सेल के अंदर और बाहर जो भी मॉलिक्यूल्स ये आ जा रहे हैं, है ना, तो इसको आप क्या बोलते हैं? इसको आप बोलते हैं ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, वन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड अनदर वन इज पैसिव ट्रांसपोर्ट, राइट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? एक्टिव मतलब क्या? जिसमें एनर्जी इन्वॉल्व्ड है ना, जिसमें क्या है? एनर्जी इन्वॉल्व है। तो ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है मॉलिक्यूल्स को अंदर बाहर लाने ले जाने के लिए, दैट इज एक्टिव। और ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है, दैट इज द पैसिव ट्रांसपोर्ट। सी, है ना, मीन्स व्हाट? ब्रीफली विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, राइट, एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उसको आप बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो कुछ न्यूट्रल सॉल्यूट्स होते हैं में मूव अक्रॉस द membrane by the process of simple diffusion along the concentration gradient, that is from higher concentration to lower concentration। अब सुनिए, होता क्या है कि एनर्जी रिक्वायरमेंट है और नहीं है ना। देखिए, पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। एनर्जी की रिक्वायरमेंट कब नहीं होगी? जब मॉलिक्यूल्स हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे, तब एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी जो जहाँ ज़्यादा है, ज़्यादा से कम की तरफ ही जा रहे हैं ना, ठीक है ना, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जब मॉलिक्यूल्स लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, है ना, तो भाई ये थोड़ा डिफ़िकल्ट प्रोसेस हो जाता है कि जहाँ ऑलरेडी कमी है फिर वहाँ से आप और कमी कर रहे हो, हाई की तरफ ले जा रहे हो, राइट। सो इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एवरीबॉडी गेटिंग मी? तो ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है जिसमें हाई टू लो जा रहा है, मीन्स ये ग्रेडियंट के अक्रॉस जा रहे हैं, मूविंग अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ ही ये
मूव कर रहे हैं, है ना। ग्रेडियंट मतलब क्या होता है बेटा, डिफरेंस, उसके अलॉन्ग ये मूव कर रहे हैं। और ये क्या है, दे आर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, राइट। तो देखिए, वाटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, वाटर भी मूव कर सकता है। तो जिसमें वाटर का मूवमेंट होता है उसको आप ऑस्मोसिस बोलते हो, ठीक है। नॉर्मली क्या है, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। लेट मी एक्सप्लेन यू दिस, बहुत ही अच्छा ये कंसेप्ट मैं यहाँ पर अब समझाने वाली हूँ। देखिए क्या समझाने वाली हूँ मैं, सी डिफ्यूजन आपका बहुत ही पुराना जो एक कंफ्यूजन है वो यहाँ पर चला जाएगा। डिफ्यूजन क्या है बेटा, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट। मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है, कहाँ से कहाँ को हो रहा है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जब मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। जैसे कि मैंने एक तरफ क्या लगा दी, इंसेंस स्टिक लगा दी मैंने, अगरबत्ती लगा दी। नाउ इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पूरे रूम में जाकर फैलेंगे। तो यहाँ पर क्या है, मॉलिक्यूल्स ने पहले हाई कंसंट्रेशन बनाया, पहले तो यहाँ पे एक धुआं सा, अ क्लाउड ऑफ धुआं यहाँ पर आप कह सकते हैं वो बनता है। देन इट स्टार्ट्स मूविंग टू द कंप्लीट रूम, राइट। तो ऑब्वियसली यहाँ पर मॉलिक्यूल्स आपके कहाँ से कहाँ को मूव कर रहे हैं, फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन मूव कर रहे हैं, है ना। कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, वेदर सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। मॉलिक्यूल में यहाँ पर कोई भी हो सकता है, सॉलिड बोल लो, लिक्विड बोल लो या फिर गैस बोल लो, राइट। अब है क्या कि डिफ्यूजन का ही वन ऑफ द टाइप है ऑस्मोसिस। सो ऑस्मोसिस व्हाट यू कॉल इट एज, इट इज़ अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन, एक तरीके से, कुछ अलग नहीं है ये। ऑस्मोसिस टाइप ऑफ डिफ्यूजन है, ओके। क्या नई चीज़ है यहाँ पर, क्या नई चीज़ है, टाइप ऑफ डिफ्यूजन है। मतलब ऑस्मोसिस में आपका केवल और केवल, पहली बात तो सुन लीजिए, मूवमेंट ऑफ लिक्विड ही होता है। स्पेसिफिकली क्या होता है, मूवमेंट ऑफ लिक्विड ही होता है, ठीक है। स्पेसिफिकली लिक्विड ही होता है। ऑब्वियसली ये लिक्विड भी आपका हाई कंसंट्रेशन से कहाँ को जा रहा है, लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, ठीक है। अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यहाँ पर एक मेम्ब्रेन आ गई है। डिफ्यूजन में कोई मेम्ब्रेन नहीं थी, यहाँ पर क्या है, एक मेम्ब्रेन आ गई है। कौन सी मेम्ब्रेन आ गई है, ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, राइट, है ना। जब लिक्विड का मूवमेंट होता है ना, फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस विच इज़ अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन ओनली। सो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट हमने सीखा, ऑस्मोसिस डिफ्यूजन हम अब तक पढ़ते तो आए हैं, लेकिन एक्चुअल में इनमें क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंस है, ये हमें नहीं पता था। सो वी स्टडीड दिस एज वेल टुडे। अब आगे देखिए क्या था यहाँ पर, हाँ जी, मूवमेंट ऑफ वाटर। देखिए यहाँ पर मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज ऑस्मोसिस ना, बताया अभी मैंने। जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर, दे रिक्वायर अ कैरियर प्रोटीन ऑफ द मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, राइट। सो होता क्या है कि हमने पढ़ा, जो ये आपकी लिपिड बाइलेयर है, ये नॉन पोलर है। देखिए यहाँ पे आपने जो इसकी टेल है नॉन पोलर है, ठीक है, नॉन पोलर है। अब कोई मान लो पोलर मॉलिक्यूल है, लेट सपोज दिस इज अ पोलर मॉलिक्यूल, तो ये पोलर मॉलिक्यूल तो ये नॉन पोलर पार्ट से जा ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या चाहिए, स्पेशल कैरियर प्रोटीन्स चाहिए पास होने के लिए। समझ में आई बात,
तो ये जो अंदर धसे हुए जो प्रोटीन्स हैं, जो इसमें एम्बेडेड जो प्रोटीन्स हैं, दे एक्ट एज द कैरियर प्रोटीन्स. ओके, दे एक्ट एज द व्हाट? कैरियर प्रोटीन्स टू कैरी द मॉलिक्यूल्स ऑफ पोलर नेचर अक्रॉस देम. ओके, तो कुछ आयंस or molecules are transported across the membrane against their concentration gradient, that is from low to high concentration. जैसे कि यहाँ पर हमने देख लिया कुछ आपके low to high concentration जा रहे हैं जिसमें energy involved होती है. Such a transport is an energy dependent process in which ATP is utilized. ओके, जिसको आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हो, लाइक योर सोडियम पोटेशियम पंप. यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिख देते हैं सोडियम पोटेशियम पंप का. ठीक है, और हमने क्या पढ़ा? कैरियर प्रोटीन्स होते हैं. व्हाट एल्स वी स्टडीड के क्या होते हैं बेटा? कुछ जो प्रोटीन्स होते हैं मेम्ब्रेन में क्या होते हैं? कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, है ना. वो क्या काम करते हैं? वो मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट कराने का काम करते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन. ठीक है, हेल्प्स ट्रांसपोर्ट द मॉलिक्यूल्स, हेल्प्स ट्रांसपोर्ट the molecules across the membrane, right? तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इंटीग्रल प्रोटीन है, ये आपको दिख रहा है इंटीग्रल प्रोटीन, जो कि इसके अंदर पूरी तरीके से धसे हुए हैं, एम्बेडेड है. ठीक है, अगर कोई पोलर मॉलिक्यूल होगा, लेट्स सपोज दिस इज अ पोलर मॉलिक्यूल, राइट. अगर कोई पोलर मॉलिक्यूल होगा तो वो मॉलिक्यूल इस मेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू जाएगा, राइट. इस मेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू जाएगा. हियर इट विल एक्ट एज द कैरियर प्रोटीन. आ रही बात? ये एक तरीके से क्या है, ये ट्रांसपोर्ट में मदद कर रहा है. ऑब्वियसली मॉलिक्यूल को एक पार्ट से दूसरे जगह पे ले जाने में मदद कर रहा है. फॉस्फोलिपिड बाइलेयर आप लोग को यहाँ पर दिख ही रही है. ये रहा हेड, है ना, विच इज़ पोलर. और ये रहे इसके टेल, विच इज़ नॉन पोलर. ओके, सो पेरीफेरल प्रोटीन्स भी हैं जो कि इसके पेरीफेरी पर होते हैं, आपको दिख ही रहे हैं, विच कैन बी इजिली एक्सट्रैक्टेड. सम अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज देयर एंड द शुगर्स आर ऑल्सो हेयर. ओके, जो कि इसकी क्योंकि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का नेचर कैसा है? क्वासी फ्लूइड नेचर है ना, क्वासी फ्लूइड नेचर है. तो ये जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह होता है ना, ये इसके स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने में मदद करता है. ठीक है, हेल्प्स स्टेबलाइज द स्ट्रक्चर. ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्वासी फ्लूइड नेचर है उसको थोड़ा स्टेबलाइज करने में ये कोलेस्ट्रॉल काम में आता है. ठीक है. अब देखिए सेल वॉल. सेल वॉल क्या है? अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है कॉल्ड द सेल वॉल, फॉर्म्स एन आउटर कवरिंग फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंगी एंड प्लांट्स. ठीक है, तो जो फंगी होते हैं, फंगल सेल्स होते हैं, एंड जो प्लांट सेल्स होते हैं, ठीक है, जो फंगल सेल्स होते हैं एंड जो प्लांट सेल्स होते हैं, उनकी आउटर कवरिंग इज मेड अप ऑफ सेल वॉल. अब सेल वॉल क्या लिविंग है या नॉन लिविंग है? तो इसको ध्यान में रखें आप बहुत अच्छे से कि ये नॉन लिविंग है, रिजिड स्ट्रक्चर है, राइट बेटा, रिजिड स्ट्रक्चर है. सेल वॉल ना तो केवल शेप देता है टू द सेल एंड प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन. आई बात समझ में? शेप तो देता ही है, नंबर वन थिंग, शेप तो इसका काम है ही. दूसरी चीज़ क्या कि सेल वॉल जो है ये सेल को मैकेनिकल डैमेज से बचाता है. तीसरी चीज़ उसको इन्फेक्शन से बचाता है. चौथी चीज़ सेल टू सेल इंटरैक्शन, मतलब दो सेल्स आपस में जो अपना इंटरैक्ट करेंगे, ठीक है, उसमें भी ये काम आता है. और प्रोवाइड्स बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स, पांचवा काम.
ठीक है। जो अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल्स हैं, जो नहीं चाहिए, अनवांटेड मॉलिक्यूल्स हैं सेल के लिए, उनके लिए बैरियर की तरह भी एक्ट करता है। तो यहाँ पर आपने 5 फंक्शंस ऑफ सेल वॉल पढ़ लिए। क्या क्या? शेप देता है, मैकेनिकल डैमेज से बचाता है सेल को, ठीक है, इन्फेक्शन से बचाता है, सेल टू सेल इंटरेक्शन में मदद करता है, एंड बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स। इस पर क्वेश्चन आ सकता है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ सेल वॉल, एंड या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ सेल वॉल, राइट। सो उसमें आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे एंड यू हैव टू टिक मार्क द करेक्ट वन। अब सुनो, जो एल्गी का सेल वॉल है, इट इज मेड अप ऑफ किसका? सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। इस पे क्वेश्चन आया है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। इस पे PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस पर पूछा गया है कि एल्गी का सेल वॉल, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स का बना है या फिर कौन कौन से कंपोनेंट्स का नहीं बना है, ऐसा आपके पास आ सकता है, ठीक है। तो आप इनको याद रखेंगे बहुत अच्छे से। सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट का बना है एल्गी का सेल वॉल। लेकिन अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं बेटा, इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना एल्गी के सेल वॉल को। ये सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स पे क्वेश्चन पूछा गया है पिछले सालों में। और अगर हम प्लांट के सेल वॉल की बात करते हैं, ठीक है, तो ये किसका बना है? सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पैक्टिन्स एंड प्रोटीन्स। ये भी आप ध्यान में रखेंगे बहुत अच्छे से, है ना, ये इनका बना है। अब जो कोई यंग प्लांट सेल होता है, ठीक है, अगर प्लांट सेल यंग है तो उसका जो प्राइमरी वॉल है, इट इज़ कैपेबल ऑफ ग्रोथ, ठीक है ना, इट इज़ कैपेबल ऑफ ग्रोथ। ये आगे क्या कर सकता है? ग्रो कर सकता है, राइट। जैसे ये बाहर की तरफ, जैसे मान लो ये प्राइमरी सेल वॉल है, ये ऐसे बाहर की तरफ ग्रो करेगा, ठीक है। ये जब बाहर की तरफ ग्रो करेगा, देखो इस तरीके से, तो ये थोड़ा थोड़ा क्या हो जाएगा? सेल देखिए आप, साइज में बढ़ रहा है। मैं यहाँ पर सेल को बढ़ा रही हूँ, है ना, और देखिए सेल साइज में बढ़ रहा है, राइट, और अंदर की तरफ से नई सेल वॉल बन के आ रही है। आई बात समझ में? अंदर की तरफ से ये नई सेल वॉल बन रही है। ये तो है आपकी क्या? प्राइमरी सेल वॉल जो ऑलरेडी थी, ठीक है। एज द सेल इज ग्रोइंग इन साइज, सेल जो है साइज में ग्रो कर रहा है, तो सेल वॉल बाहर की तरफ जा रही है ना। तो ये क्या हो रही है? डिमिनिश हो रही है। दिख रहा है आपको? डिमिनिश होती हुई दिख रही है, बना दिया मैंने यहाँ पर, राइट। और ये जो है, ये क्या है? ये है सेकेंडरी सेल वॉल जो अंदर की तरफ से न्यू बनती हुई आ रही है। सुनिए यहाँ पर क्या लिखा है, जो प्राइमरी वॉल है इट इज़ कैपेबल ऑफ ग्रोथ, ठीक है, जो कि ग्रेजुअली डिमिनिश कर जाती है एज द सेल मैच्योर्स। और जो सेकेंडरी वॉल है इज फॉर्म्ड ऑन द इनर टुवर्ड्स मेम्ब्रेन साइड ऑफ द सेल। बनाया मैंने यहाँ पर, देखिए अंदर की तरफ से बन के आएगी सेकेंडरी सेल वॉल, राइट, और जो वो बाहर की तरफ जाती चली जाएगी और प्राइमरी सेल वॉल डिमिनिश हो जाएगी। क्लियर? सो जो मिडिल लेमेला है इज अ लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट भी होता है, इसको भी आप ध्यान में रखें, है ना। मिडिल लैमेला किसका बना है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट का। इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है, मिडिल लैमेला पर भी, इसको भी आप मार्क कर लें, ठीक है। मिडिल लैमेला क्या होता है बेटा? सीमेंटिंग मटेरियल है एक तरीके से, राइट। 2 सेल्स है ना, 2 सेल्स हैं ये, ठीक है। ये 2 सेल्स हैं, 2 सेल्स के बीच का जो ये सीमेंटिंग मटेरियल है, ठीक है, तो ये है आपका मिडिल लैमेला, ठीक है, विच इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट, ठीक है, विच होल्ड्स और ग्लूज द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर, ठीक है। 2 नेबरिंग सेल साथ में रहते हैं। सो जो सेल वॉल है एंड मिडिल लैमेला है,
may be traversed by plasmodesmata which connect the cytoplasm of neighboring cells, right? Plasmodesmata क्या है? ये दो सेल्स हैं, दो सेल्स का जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, राइट? प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में कनेक्टेड होता है, ये एक तरीके से साइटोप्लाज्मिक ब्रिज आप बोल लो। क्या है ये है प्लाज्मोडेस्माटा। दिस इज प्लाज्मोडेस्माटा विच इज दी साइटोप्लाज्मिक ब्रिज, मतलब दो सेल्स के बीच में साइटोप्लाज्म का ब्रिज है जो कि उनको आपस में कनेक्ट करने में मदद कर रहा है ना? दिस इज साइटोप्लाज्मिक ब्रिज, राइट, जो कि दो नेबरिंग सेल्स के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू ऑल लाइक्ड द वीडियो एंड आपको चीज़ें क्लियरली समझ में आई होंगी। आज हमने सेल वॉल तक पढ़ा है। विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन, और बिना लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए नहीं जाइएगा। ओके, बाय बाय।